difference between series resonance and parallel resonance. ठीक है, तो why we create resonance? Already studied कि resonance phenomena is a phenomena in which a particular frequency is passed and other frequencies are rejected. We have seen that at resonance current is maximum, voltage magnification taking place, impedance minimum, power is maximum, everything is good. Okay? So resonance is taking place at a particular frequency. At some say particular frequency, the resonance phenomena is taking place. और हमने देखा था कि we have seen what we have seen. If any signal is radio frequency signal is there or your channel is there, that channel is selected through tuning of RLCs. We will see that channel and remaining channel is logged, right? Or for that we also studied the band of frequency, bandwidth of the frequency. A particular band of frequency is passed and remaining frequency is suppressed. Means at a time we can watch only one channel. And we have derived the expression for half power frequencies also. It is the range of the frequency at which the power is minimum half or greater than equal to half power to that of resonance. That frequency is called as half power frequency, omega 1 and omega 2. We have derived the expression for omega 1, omega 2 or F1, F2, 2 pi से divide करोगे तो F1, F2. And I had also told you that series resonance circuit is called as acceptor circuit. It will allow to pass a particular signal, particular कोई band of frequency को pass करना है तो there we will use series resonance. So now today we are going to study the concept of parallel resonance. Parallel resonance. What do you mean by parallel resonance? Parallel resonance circuit consists of resistance, inductor, and generally capacitor is in parallel. This is the basic circuit. Parallel resonance circuit consists of resistance and inductor connected in series, capacitor in parallel. Sometimes you can add one resistance in series with capacitor also, but in general practically capacitor resistance is not there, but inductor always there is some resistance is here, because once coil, if any coil is there, inductive coil is there, so minimum resistance of coil is always there. It is not a superconductor. Only superconductor material has zero resistance. So in parallel resistance, inductor and capacitor are connected in parallel, and one resistance is also added in series with the inductor. Already we have studied series resonance circuit. Series resonance circuit is called as acceptor circuit. This line is very important. Why I am saying again and again? Because maybe in MCQ questions, this question is asked. Series resonance circuit is called as acceptor circuit. Similarly, I can compare analogy of series resonance. Parallel resonance circuit is called as rejector circuit. Rejector. Parallel resonance circuit is called as rejector circuit. Means this circuit will reject a particular band of frequency, a particular frequency को आपको रिजेक्ट करना है, उसको पास होने नहीं देना, उसको रोकना है, तो there we will use as a rejectors. Hundreds signals are coming. If you want to pass one circuit, one signal, you use series resonance, and 99 signals are blocked, particular frequency. Similarly, if you want to reject one signal and pass 99, so there you will connect a parallel resonance circuit in which only one signal, one particular signal is stopped and remaining signals are passed. Therefore, we call it as a parallel resonance circuit is called as rejector circuit. Parallel resonance circuit is called as rejector circuit. All the properties are of series resonance. Current will be minimum. उल्टा चलेगा, सब उल्टा चलेगा. Current will be minimum.
impedance maximum, and in opposite way you can say in parallel resonance circuit you can say in parallel resonance circuit you can say it is a complement of series resonance circuit. Your circuit will, what will be the property? The circuit will reject the particular frequency signal. Current will be minimum. Series resonance circuit current is maximum. Parallel resonance circuit current will be minimum. Current आपका क्या हो जाएगा? Minimum हो जाएगा. Power minimum. Power factor will remain same. Unity power factor. तो सब properties उल्टी हो जाएगी. Your property will be opposite, right? Properties continuously change होते जाएगी. Series resonance circuit current is maximum. Parallel resonance circuit current is minimum. Power is minimum. Series resonance circuit impedance is minimum, current is impedance क्या हो जाएगा? Minimum हो जाएगा. और you can say impedance maximum हो जाएगा. And you can say admittance will be minimum. Admittance will be minimum, right? तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के पास प्रॉपर्टी चेंज होता है. दिस इज V, यहाँ IC/IL है और यहाँ पे I. तो स्लोली वी कैन सी. तो वी विल सॉल्व डायरेक्टली फॉर एडमिटेंस. हमने क्या लिया था इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट? हमने क्या किया था? इंपीडेंस फाइंड किया था एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस को जीरो कर दिया था यूनिटी पावर फैक्टर. यहाँ पे हम देयर आर अदर मेथड्स इन बुक आल्सो. तो हम इसमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली लेंगे, विल फाइंड एडमिटेंस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस को हम जीरो से इक्वेट करेंगे. सीरीज में क्या किया था हमने? Z इज इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC. इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस को जीरो कर दिया था. XL इज इक्वल टू XC कर दिया. तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस को जीरो कर देंगे बस. एनालॉजी फॉलो करेंगे हम बस. सीरीज रेजोनेंस में हमने इंपीडेंस को मिनिमम कर दिया था, हम यहाँ पे एडमिटेंस को मिनिमम कर. तो हम वी विल नॉट सी फॉर इंपीडेंस, वी विल लुक फॉर एडमिटेंस. एडमिटेंस क्या होगा? R प्लस J ओमेगा L का एडमिटेंस हो गया R प्लस J ओमेगा L. 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा L इज एडमिटेंस ऑफ दिस एंड इसका एडमिटेंस क्या होगा? J ओमेगा. Called as y is equal to 1 upon r plus j omega l plus. इक्वेशन को केयरफुली देखो. आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि एडमिटेंस क्या होता है? 1 अपॉन पैरेलल में क्या होता है? 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2. ये सीरीज में r प्लस j ओमेगा l का 1 अपॉन r प्लस j ओमेगा, और ये 1 अपॉन j ओमेगा c ऊपर जाके क्या हो गया? j ओमेगा c. तो दिस इज द एडमिटेंस ऑफ parallel resonance circuit. Y is equal to 1 upon R plus J omega L plus J omega C is the admittance of parallel circuit. RL parallel. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो से इक्वेट कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन. तो बस दिस फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट इन RLC parallel circuit की admittance, imaginary part of admittance is equated to. अब now you can solve it. आप इसको slowly solve कर लो. इसको solve कर लो. थोड़ा सा आपको mathematically लेंदी लगेगा, but इसको solve कर लो. नीचे imaginary part को आपको in complex number you have already studied separating real and imaginary part. Imaginary part आपको denominator से हटाना है. Best way is to rationalize it. Best way is to rationalize it. रैशनलाइज कर दो इसको. रैशनलाइज क्या हो गया? y इज इक्वल टू r माइनस j ओमेगा l, r प्लस j ओमेगा l, r माइनस j ओमेगा l. ठीक है. यू ऑलरेडी स्टडीड कि मुझे नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा. r प्लस j ओमेगा l, r माइनस j ओमेगा l को मल्टीप्लाई कर दूंगा. यू विल गेट दिस एज R minus j omega L upon
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। Anybody having any doubt, any queries, you can ask. R a plus b upon a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और j स्क्वायर इज -1, तो नीचे बचा r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, राइट? अब इसको और सॉल्व कर लो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, क्या हो जाएगा? रियल पार्ट इज r अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्व कर लो, माइनस j ओमेगा अगर तुम कॉमन लेते हो, माइनस जे ओमेगा अगर आप कॉमन लेते हो, जे ओमेगा यहाँ भी है, जे ओमेगा यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली देख लो इक्वेशन को, राइट डाउन इक्वेशन केयरफुली। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते। मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया, जे ओमेगा कॉमन ले लिया, तो एल माइनस सी बच गया और ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। राइट डाउन केयरफुली, बहुत केयरफुली लिखो। बस इसको इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। यहाँ पे real part and imaginary part is separated. You can see that real part and imaginary part is separated. Now you can equate the imaginary part to zero. इसको आप जीरो से इक्वेट, imaginary part को जीरो से इक्वेट। You can make the imaginary part as zero. Imaginary part को आप जीरो बनाओ, जैसे आप जीरो बनाओगे आपको फाइनल आंसर। इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, टॉप में देखो, एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मैंने इमेजिनरी पार्ट को नीचे से जीरो कर दिया। दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो, so you will get L minus C omega R square plus omega L square is equal to G, or you will get L by C is equal to R square plus omega L square. Solve for omega, omega क्या हो जाएगा? Omega L square is equal to L by C minus R, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय एल स्क्वायर से करो, डिवाइड करो, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर, और फाइनली आई कैन राइट ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाय एल सी माइनस। So this is the expression for resonant frequency under parallel resonance condition. Parallel resonance का frequency का expression क्या है? 1 upon LC minus R square by L square, और F0 is equal to 1 upon 2 pi हो जाएगा, 1 upon 2 pi under root of 1 by LC by minus R. So I can finally write F0 is equal to 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC minus R by L. This is the expression for frequency under parallel resonance condition. Parallel resonance condition. This is the expression for frequency of parallel resonance condition. I hope so.
Everybody understood this? ये सब कुछ keywords है. These are some important formulas which you have to remember, all of you. आपको फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको एक डायरी बनानी पड़ती है, तो सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये सब चीजों के फॉर्मूले से आपके पास रेडी रहना चाहिए व्हेन यू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट एग्जाम, आईएएस एग्जाम. लास्ट नाइट में रिफर करने के लिए आपके डायरी में ये सब फॉर्मूले ऐड ऑन होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट स्टडी एंटायर बुक ऑन वन डे, बट एटलीस्ट वन डे बिफोर एग्जाम यू कैन सी द फॉर्मूलेस एंड यू कैन रिमेंबर. ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल. The imaginary part is 0 means circuit is purely resistive circuit. Circuit act as a purely resistive circuit. Of course, admittance is minimum, तो impedance is maximum. करंट सब बहुत कम होगा. पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, करंट मिनिमम होता है. अगर मैं इसका वेवफॉर्म प्लॉट करता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो वेवफॉर्म ऐसा है. पैरेलल रेजोनेंस का वेवफॉर्म कैसा जाता है कि एट पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f0 करंट इज मिनिमम, कम से कम होता है, वेरी लो करंट, एंड एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी करंट इज ग्रेटर देन मिनिमम करंट. करंट सबसे कम होता है, ठीक है. एंड सर्किट एक्ट ऐसा भी है ऐसा. ऑफ कोर्स पावर फैक्टर इज यूनिटी. वी आर मेकिंग इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0. इमेजिनरी पार्ट हमने हटा. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज, दे कैन आस्क. यू हैव टू ड्रॉ फेजर डायग्राम आल्सो. आई डोंट नो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ड्रॉइंग इन फेजर डायग्राम आल्सो. पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप थोड़ा सा केयरफुली देखो. Current through capacitor, current voltage across capacitor leads by 90 degree, and V is common in parallel circuit. I can write this V as a reference for drawing phasor diagram. I will take V as a reference, and IC draw करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. IC current leads by 90 degree. Already all of you know. Current leads by 90 degree, all of you know. तो करंट IC ड्रॉ करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. ये टोटल वोल्टेज V है, तो RL का हमने फेजर डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया. RL है और ये V है, इसका फेजर डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया. आपने देखा होगा, हम लोग ये I लेते हैं, ये VL लेते हैं, R लेते हैं, और ये दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है, V1. ऑलरेडी RL सर्किट का आपने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया. जस्ट लुक फॉर RL. V, ये VL है, करंट लाइन्स बनाने के लिए VR है, और ये V. तो V और I ड्रॉ करना है आपको फाई. तो V और I के बीच में एंगल क्या होता है, फाई होता है. तो IL will come somewhat here with an angle of phi. Just compare RL सर्किट. RL सर्किट में V और IL के बीच में क्या होता है, फाई एंगल बनता है. देखो VR और I फेज में रहते हैं, I और VL 90 डिग्री में रहते हैं, और V एंड I क्या होते हैं, फाई एंगल. तो हमने कैसे ड्रॉ किया था, I लिया था, VL, VR, VL एंड VR को ऐड करके V किया. ऑलवेज एंगल बिटवीन V एंड I इज फाई, इसलिए मैंने V एंड I के बीच में एंगल फाई बना. एंड IL प्लस IC इज इक्वल टू टोटल I. IL प्लस IC इज इक्वल टू टोटल I. ये समवॉट ये ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री फेज बनते हैं. I will be in phase with V. इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, IC एंड और ये वर्टिकल मैग्नीट्यूड. IC प्लस IL इज इक्वल टू I.
and I will be in phase with V, तभी पावर फैक्टर आपकी 1 होगी। हमें ये फाइल नहीं देखना है, I और V का फाइल देखना है। I और V का फाइल क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज यूनिटी, तो आपका पावर फैक्टर क्या है? Parallel resonance circuit is called as rejector circuit because it will allow very small signal, very low current, minimum current to pass. सिग्नल को पास होने देगा ही नहीं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इट इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट विल ब्लॉक द सिग्नल, ब्लॉक कर। बी केयरफुल। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास क्या हो गया? ओमेगा 0 f0 w cos phi is equal to 1. Power factor is unity, and this is phasor diagram. Okay. And parallel resonance circuit is called as rejector circuit. This is all about series resonance circuit and parallel resonance circuit. अब बस आपके हाथ में बचता है न्यूमेरिकल्स। सम न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व। Anybody having any doubt, they can ask. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो फाइनल जेड क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल जेड? वो थोड़ा सा आप देख लो। जेड मैंने इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दिया था, रियल पार्ट विल बी योर जेड। रियल पार्ट हमने क्या निकाला था? आर अपॉन, और फाइनल वाई इज इक्वल टू क्या निकला था आपके पास? आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। फाइनल जेड क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड ओमेगा की वैल्यू आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, अगर वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो और इसको सॉल्व करोगे तो इफेक्टिव जेड कुछ और ही आएगा। इफेक्टिव जेड आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो इफेक्टिव जेड वैल्यू इज कमिंग सी एल अपॉन सी आर एल। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये एक फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। जेड वैल्यू इज एल अपॉन, वैल्यू ऑफ जेड इज एल अपॉन सी आर। तो अगर ये फॉर्मूले आपके पता है तो आप पैरेलल रेजोनेंस की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जेड पता हो गया तो आप आई भी निकाल सकते हो। आई विल बी वी अपॉन, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। बाकी सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। एक आध न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल सीरीज रेजोनेंस का, वन पैरेलल रेजोनेंस का, दो न्यूमेरिकल हम कल करते हैं एक न्यूमेरिकल। देन यू आर इन पोजीशन कि हमारा ये पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद देन वी विल स्टडी, वी हैव टू स्टडी